وہ اس قدر شرمیلا تھا کہ اپنے دوستوں کو ملنے سے گھبراتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے دور کا بہترین مقرر بن گیا۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس قدر مشہور ہوں کہ ان کے نام کی جگہ اکثر ان کے نام کے ابتدائی حروف استعمال کیے جائیں۔ ان میں سے آئرلینڈ کا ایک باشندہ بھی تھا۔ اس کے نام کے ابتدائی حروف GBS ہیں۔ میرے خیال میں وہ اپنے وقت کا سب سے نامور ادیب تھا۔ اس کی ناقابل اعتبار زندگی کی کہانی پر ایک ایسی کتاب لکھی گئی ہے جس کا عنوان بھی اس کا نام نہیں، فقط سرورق پر 3 حروف درج ہیں GBS۔ جارج برنارڈ شاہ کی زندگی عجیب تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ مثلاً اس نے فقط 5 برس اسکول میں تعلیم پائی، لیکن رسمی تعلیم کی کمی کے باوجود اسے اپنے دور کا عظیم ترین ادیب تسلیم کیا گیا ہے، اور اسے زندگی میں وہ اعزاز حاصل ہوا جو ایک ادیب کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، یعنی اس نے ادب میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ یہ انعام 7,000 پاؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن جارج برنارڈ شاہ نے محسوس کیا کہ نہ اسے اعزاز اور نہ ہی روپے کی ضرورت ہے، لہذا اس نے روپیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اسے اس بات پر رضامند کیا گیا کہ وہ فقط 1 سیکنڈ کے لیے یہ رقم قبول کر لے اور ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے وانگلو سوڈش ادبی اتحاد نامی جماعت کے لیے وقف کر دے۔ برنارڈ شاہ کا والد ایک اچھے آئرش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نے اپنی ایک امیر چچی کی مرضی کے خلاف برنارڈ شاہ کے والد سے شادی کی تھی، اور اس جرم کی پاداش میں اس کی چچی نے اسے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا تھا۔ کنبے کی مالی حالت اس قدر پتلی ہو گئی کہ برنارڈ شاہ کو 15 برس کی عمر میں پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً کام کرنا پڑا۔ ملازمت کا پہلا برس وہ 1 پونڈ ماہوار سے بھی کم تنخواہ پر کام کرتا رہا۔ اس کی ہفتہ وار تنخواہ 35 شلنگ تھی، لیکن اسے دفتری کام سے نفرت تھی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں علم و فن اور ادب و موسیقی کی شمع روشن تھی۔ 7 برس کی عمر میں برنارڈ شاہ نے شیکسپیئر، بنیان، الف ل اور بائبل کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ جب وہ 12 برس کا تھا تو بائرن، ڈکنس، ڈوما اور شیلے اس کی نظر سے گزر چکے تھے۔ 18ویں برس میں قدم رکھنے سے پہلے وہ ٹائی وال، سٹورٹ مل اور ہربرٹ سپنسر کی نگارشات سے واقف ہو چکا تھا۔ عظیم ادیبوں نے اس کے تصور کو تیز تر کر کے اس کا ذہن عجیب خوابوں کی آماجگاہ بنا دیا تھا، اور وہ اسی سبب اپنے دفتری امور میں بالکل دلچسپی نہ لیتا تھا۔ اس کا تصور تو ادب، فن، سائنس اور مذہب کے حسنزاروں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ اپنی 20ویں سالگرہ سے تھوڑا عرصہ پہلے GBS نے خود سے کہا، زندگی فقط ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے، میں اسے دفتری الجھنوں کا ہرگز شکار نہ ہونے دوں گا۔ لہذا 1876 میں وہ ملازمت ترک کر کے لندن چلا آیا، جہاں اس کی والدہ موسیقی کا سبق دے کر گزر اوقات کر رہی تھی۔ وہاں برنارڈ شاہ نے اس ادبی زندگی کا آغاز کیا جس نے اسے دولت اور دنیا میں شہرت بخشی تھی، لیکن ادب سے روزی کمانے سے پیشتر وہ متواتر 9 برس تک لکھتا رہا۔ اس نے اپنا سارا وقت لکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ہر روز خود کو 5 صفحے لکھنے پر مجبور کرتا، زیادہ نہیں، فقط 5 صفحے۔ اس کے متعلق شاہ لکھتا ہے، میرے اندر طالب علم اور کلرک ابھی تک چھپا بیٹھا تھا۔ اگر 5واں صفحہ کسی جملے کے درمیان ختم ہو جاتا تو میں وہ جملہ ادھورا ہی رہنے دیتا اور اسے اگلے دن مکمل کرتا۔ 9 سال کے عرصہ میں اس نے 5 طویل ناول لکھے۔ ان میں سے ایک کا نام فنکاروں کے درمیان محبت تھا۔ اس نے اپنے ہر ناول کا مسودہ انگلینڈ اور امریکہ کے ہر ناشر کے پاس بھیجا، لیکن ہر کسی نے انہیں واپس بھیج دیا۔ بعض ناشروں نے اتنا ضرور لکھا کہ وہ اس کی اگلی کوشش کو دیکھنا پسند کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی نے اس کی ادبی صلاحیتوں پر نکتہ چینی نہ کی اور اسے یہ نہ کہا کہ وہ کوئی دوسرا کام کر لے تو بہتر ہوگا۔ بات سرمایہ کا مطالعہ میری زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہ تھا۔ کارل مارکس میرے لیے ایک انکشاف تھا، اگرچہ اس کی مبہم اقتصادیات بعد میں نے غلط پائی، لیکن اس وقت اس نے میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس نے تاریخ اور تہذیب کے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں روشن کر دیں اور ان کے متعلق مجھے ایک تازہ
मुझे अपनी जिंदगी का कोई मकसद, कोई नस्ब अलैन दिखाई देने लगा। किस्सा मुख्तसर, उसने मुझे इंसान बना दिया। हाँ, अब बर्नार्ड शा का लहू लोगों में बोलने लगा था। इसका शर्मीलापन और इनकिसारी जाती रही थी। शाह के हाथ में एक किताब आ गई थी, बल्कि ये कहना ज्यादा मौजू होगा कि एक शाह एक किताब के सिहर में गिरफ्तार हो गया था। एक किताब जिसने इसे जिहाद पर तैयार कर दिया और उसकी अपनी हस्ती उसकी नजरों से ओझल हो गई। अब उसे अपने नस्ब अलैन के सिवा कोई चीज अजीज न थी। अगले 12 बरस वो तकरीबन हर रात गलियों की नकड़ोहे पर खड़ा होकर अवामी जलसागाहों और कलिसाओं में सोशलिज्म का प्रचार करता रहा। लोग इसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो उनसे बेनियाज अपनी धन में मगन रहा और एक दिन वो अपने वक्त का अजीम मुकर्रर बन गया। आखिर एक मुकर्रर की हैसियत से इसकी मांग इस कदर बढ़ गई कि लोग मुआवजा देकर इससे तकरीरें कराने लगे। लेकिन ऐसे मुआवजे वो अपने पर हराम समझता और ये रकूम अपने नस्ब अलैन पर खर्च करता। 1896 में बर्नार्ड शाह शार्लेट टाउन शिनैन नामी एक खातून से मिला। इस वक्त शाह 40 बरस का कनवारा और शार्लेट 39 बरस की कनवारी खातून थी। शार्लेट को वर्षे में खासी दौलत मिली थी। शाह को इन दिनों अमेरिका में अपने एक ड्रामे की कामयाबी पर 20,000 पाउंड मिले थे। शार्लेट मुआशरती जिंदगी से तंग आ चुकी थी और सोशलिज्म से बहुत मुतासिर हुई थी। वो शाह में दिलचस्पी लेने लगी और इस हकीकत से इसे आगाह कर दिया। बाद में वो शाह को खुद पसंद और जालिम कहा करती थी। 2 बरस गुजर गए। इस दौरान में शाह को शादी का कभी ख्याल भी न आया। आखिर मार्च 1898 में शार्लेट म्यूनिसिपल इदारों के मुताले के गरज से रोम चली गई। जब वो रोम पहुंची तो उसे एक तार मिला। शाह बुरा सख्त बीमार था। वो उल्टे कदमों लंदन वापस लौट आई। ज्यादा काम करने से शाह की सेहत खराब हो गई थी। जिस गंदे कमरे में वो काम किया करता था, उसकी हालत देखकर शार्लेट को सख्त सदमा हुआ। इस कमरे के मुतालिक शाह खुद ही कहा करता था कि उसे तो फकत बारूद का एक फीता ही साफ कर सकता है। अगर 7 जवान लड़कियां और 7 जवान लड़के निस्फ सदी तक ये कमरा साफ करते रही तो फिर भी इस पर कोई असर ना होगा। उन्होंने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के 45 बरस बड़े हंसी खुशी से गुजारे। मिसेस शाह का इंतकाल 12 सितंबर 1943 को हुआ। हर शख्स यही चाहता था कि वो शाह से 20 बरस छूटी थी और शाह इससे पहले मरेगा। लेकिन हकीकत में उनकी बाहमी उम्रों का फर्क सिर्फ 4 माह था। अगरचे शाह 1856 में पैदा हुआ था, लेकिन इसने 1946 में ऐलान किया था कि वो इस कदर मसरूफ है कि अभी मौत के बारे में सोचने के लिए इसके पास वक्त नहीं। उसने कहा था, मैं जिंदगी में जिंदगी की खातिर दिलचस्पी लेता हूं। ये मेरे नजदीक कोई मुख्तसर शमा नहीं। मेरे लिए ये एक शानदार मशल है और मेरे हाथ में है। इसे आइंदा पौध के सुपुर्द करने से पहले मैं इसे ज्यादा से ज्यादा रोशन। इन दिनों बर्नार्ड शाह की माली हालत इस कदर नागुफ्ताबा थी कि उसके पास अपने मुसव्वदे इरसाल करने की खातिर टिकट खरीदने के लिए भी पैसे ना होते थे। अदबी जिंदगी के पहले 9 बरस में इसकी आमदनी फकत 6 पाउंड थी। इसके बदन पर अक्सर फटे पुराने कपड़े होते और उसके जूतों में लंबे लंबे सुराख, लेकिन वो कभी भूखा ना रहा था। इसकी वालिदा नान बाई और परचून फरोश से उधार लेकर इसे भूख के चुंगल से बचाती रही। अपनी अदबी जिंदगी के इब्तिदाई 9 बरस में उसने अदब से पहले 5 पाउंड एक नई दवा के मुतालिक एक मजमून लिखकर कमाया। 6 पाउंड इसने एक दफा इलेक्शन के मौके पर वोटों की गिनती करके हासिल किया। तो फिर शाह जिंदा रहने के लिए पैसे कहां से लेता था? उसने बिला तकल्लुफ तस्लीम किया है कि उसके कुंबे को उसके सहारे की अशद जरूरत थी, लेकिन वो कुंबे की माली हालत बेहतर बनाने के लिए कुछ न करता था। इसके बरक्स वो कुंबे का दस्त नगर था। जैसा कि शाह ने खुद कहा है, मैंने खुद को माश के बखेड़ों में डालने की बजाय अपनी वालिदा को डाल रखा था। आखिर शाह फनून लतीफा के नक्काद की हैसियत से खुद कफील हो गया। इसकी पहली अदबी और माली कामयाबी उसके नावलों की बजाय इसके ड्रामे साबित हुए। ये अलग बात है कि इसके तमाम इब्तिदाई ड्रामे नाकाम निकले।
इस बात पर यकीन नहीं आता कि बर्नार्ड शा जो एक बेहतरीन और आला दर्जे का मुकर्रर था और बड़े से बड़े मजमा का मुकाबला करने की सलाहियत रखता था और आइली कवानीन, जमहूरी, हीरा फेरी, मजहबी इदारों और इंसानों की तकरीबन तमाम मुरव्वजा रवायात पर खुलम खुला कड़ी तनकीद करता था। किसी जमाने में शर्मीलेपन, इनकिसारी और एहसास कमतरी में बुरी तरह मुब्तला था। लेकिन यह हकीकत है, मसलन जवानी के दिनों में शाह कभी कभी इन दोस्तों को मिलने के लिए जाता जो लंदन में दरियाए टीम्स के किनारे रहते थे। ऐसे मौक़ों पर शाह की क्या हालत होती थी, इसका नक्शा उसने खुद बयान किया है। शर्मीलेपन की अजियत मुझे इस कदर तंग किया करती कि मैं बाज़ औक़ात अपने किसी दोस्त के दरवाजे पर दस्तक देने से हिचकिचाता और कितनी कितनी देर तज़ब्ज़ुब के आलम में इसके मकान। फिर मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता और रास्ते में खुद से कहता कि अगर वापस चले आना इतना आसान है तो फिर खुद को अजियत में मुब्तला करने से क्या फ़ायदा। बहुत कम लोग जवानी में मुझसे ज़्यादा बुज़दिल दूसरे अल्फाज में शर्मीले होंगे। इसके बावजूद बर्नार्ड शा मुआशरे में अपने तर्ज सलूक के मुतालिक इस कदर मोहतात था कि लंदन की हर अच्छी लाइब्रेरी में इसे आदाब जिंदगी के मुतालिक जो भी किताब नजर आई उसने पढ़ डाली। लेकिन जिस वाहिद किताब से इसने इस्तिफादा किया, इसका नाम है अच्छे मुआशरे का लब और लहजा। आखिर उसने अपने शर्मीलेपन और इनकिसारी पर काबू पाने के लिए एक राह निकाली और वो फिन तकरीर की एक क्लास में दाखिल हो गया। पहल चंद दफा उसने इस एतिमाद के साथ तकरीर की कि अगले चंद मौक़ों पर उसे मजलिस मुबाहिसा का सदर बना दिया गया। इसके बावजूद वो दाखिली तौर पर इस कदर घबरा जाता कि ऐसे मौक़ों पर इसके लिए अपनी कपकपाती हुई उंगलियों से कार्रवाई के रजिस्टर पर दस्तखत करना मुश्किल हो जाता। नोटिस की अदम मौजूदगी में इसे याद ना रहता कि वो क्या कहना चाहता है। तकरीर करते वक्त उसकी हालत बड़ी काबिल रहम होती। इसके बावजूद लोग उसकी बातें सुनते। अपने शर्मीलेपन पर काबू पाने की इसने किस्म खाली। लंदन में जहां कहीं अवामी जलसा होता वो वहां जरूर जाता और अगर उसे बोलने का मौका मिल जाता तो जरूर बोलता। फिर एक शाम जबकि शाह की उम्र 26 साल की थी, इसने तरक्की और इफलास के मुसन्निफ हेनरी जॉर्ज की तकरीर सुनी। वो सिंगल टैक्स के नजरिए पर इजहार ख्याल कर रहा था। ये तकरीर सुनने के बाद शाह सियासत की राह पर चल निकला और वो फौरन जमीन को कौमी मलकियत बनाने के मौजू पर तकरीरें करने लगा। फिर किसी ने इसे बताया कि सिंगल टैक्स के मसला पर कोई शख्स उस वक्त तक बहस करने के काबिल नहीं होता जब तक इसने कार्ल मार्क्स की किताब सरमाया ना पढ़ी हो। इस किताब के मुताला ने इसकी बाकी जिंदगी पर क्या असर किया, ये खुद सरमाया का मुताला मेरी जिंदगी में एक इनकलाब से कम न था। कार्ल मार्क्स मेरे लिए एक इंकिशाफ था, अगरचे इसकी मुबहम इक्तिसादियात बाद में मैंने गलत पाई, लेकिन इस वक्त उसने मेरे सामने एक नया दरवाज़ा खोल दिया। उसने तारीख और तहजीब के हक़ाइक़ के बारे में मेरी आंखें रोशन कर दें और उनके मुतालिक मुझे अपनी जिंदगी का कोई मकसद, कोई नस्ब अल-ऐन दिखाई देने लगा। किस्सा मुख्तसर, उसने मुझे इंसान बना दिया। हाँ, अब बर्नार्ड शा का लहू लोगों में बोलने लगा था। इसका शर्मीलापन और इनकिसारी जाती रही थी। शाह के हाथ में एक किताब आ गई थी, बल्कि ये कहना ज्यादा मौजू होगा कि एक शाह एक किताब के सिहर में गिरफ्तार हो गया था। एक किताब जिसने इसे जिहाद पर तैयार कर दिया और उसकी अपनी हस्ती उसकी नजरों से ओझल हो गई। अब उसे अपने नस्ब अल-ऐन के सवा कोई चीज अजीज न थी। अगले 12 बरस वो तकरीबन हर रात गलियों की नकड़ोहे पर खड़ा होकर अवामी जलसागाहों और कलिसाओं में सोशलिज्म का प्रचार करता रहा। लोग इसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो उनसे बेनियाज अपनी धन में मगन रहा और एक दिन वो अपने वक्त का अजीम मुकर्रर बन गया। आखिर एक मुकर्रर की हैसियत से इसकी मांग इस कदर बढ़ गई कि लोग मुआवजा देकर इससे तकरीरें कराने लगे। लेकिन ऐसे मुआवजे वो अपने पर हराम समझता और ये रकूम अपने नस्ब अल-ऐन पर खर्च करता। 1896 में बर्नार्ड शा शार्लेट टाउन शिनेन नामी एक खातून से मिला। इस वक्त शाह 40 बरस का कनवारा और शार्लेट 39 बरस की कनवारी खातून थी। शार्लेट को वर्षे में खासी दौलत मिली थी।
शाह को इन दिनों अमेरिका में अपने एक ड्रामे की कामयाबी पर 20,000 पाउंड मिले थे। शार्लेट मुआशरती जिंदगी से तंग आ चुकी थी और सोशलिज्म से बहुत मुतासिर हुई थी। वो शाह में दिलचस्पी लेने लगी और इस हकीकत से इसे आगाह कर दिया। बाद में वो शाह को खुद पसंद और जालिम कहा करती थी। 2 बरस गुजर गए। इस दौरान में शाह को शादी का कभी ख्याल भी ना आया। आखिर मार्च 1898 में शार्लेट म्यूनिसिपल इदारों के मुताले के गरज से रोम चली गई। जब वो रोम पहुंची तो उसे एक तार मिला। शाह बुरा सख्त बीमार था। वो उल्टे कदमों लंदन वापस लौट आई। ज्यादा काम करने से शाह की सेहत खराब हो गई थी। जिस गंदे कमरे में वो काम किया करता था उसकी हालत देखकर शार्लेट को सख्त सदमा हुआ। इस कमरे के मुतालिक शाह खुद ही कहा करता था कि उसे तो फकत बारूद का एक फीता ही साफ कर सकता है। अगर 7 जवान लड़कियां और 7 जवान लड़के निस्फ सदी तक ये कमरा साफ करते रही तो फिर भी इस पर कोई असर ना होगा। उन्होंने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के 45 बरस बड़े हंसी खुशी से गुजारे। मिसेस शाह का इंतकाल 12 सितंबर 1943 को हुआ। हर शख्स यही चाहता था कि वो शाह से 20 बरस छूटी थी और शाह इससे पहले मरेगा, लेकिन हकीकत में उनकी बाहमी उम्रों का फर्क सिर्फ 4 माह था। अगरचे शाह 1856 में पैदा हुआ था, लेकिन इसने 1946 में ऐलान किया था कि वो इस कदर मसरूफ है कि अभी मौत के बारे में सोचने के लिए इसके पास वक्त नहीं। उसने कहा था, मैं जिंदगी में जिंदगी की खातिर दिलचस्पी लेता हूं। ये मेरे नजदीक कोई मुख्तसर शमा नहीं। मेरे लिए ये एक शानदार मशल है और मेरे हाथ में है। इसे आइंदा पौध के सुपुर्द करने से पहले मैं इसे ज्यादा से ज्यादा रोशन